Good morning, friends, and welcome to today's webinar. This is about Nifty and Bank Nifty trading with our X2 system. Not only Nifty and Bank Nifty, you can trade any market with this system. We have been continuously conducting live webinars in Bitcoin, gold, Dow Jones, etc. So this system is for all world markets. So you can trade any market, any instrument with this system, and it is both for intraday and swing trading. So let us see now what are the rules for this system and how to trade, how to take no entries, stop loss, etc. So before starting, I'll give you brief instructions. No, first point is if it gets disconnected, no, if webinar gets disconnected, you can reconnect with the same link. And the second point is no, this webinar will be in English and Hindi both. And I can even speak Telugu also. If anybody wants the information, the explanation in Telugu, you can ask in chat box or Q&A. So whatever queries that you have, no chat box रहता वहाँ पे आप उसमें आप पूछ सकते हैं. नहीं तो if you want me to unmute, I'll unmute and you can ask me questions directly. And third point, no, इसका ये system का training videos, no, you can go through our channel, no, sorry, website xponerator.com. So this is our site, no, which is about no softwares only. So new website xpontradingclub.com will be ready in another 2-3 weeks time. So in this one, you can see all training videos X1, X2, X3, X4, X5, etc. But no, in this webinar, today's webinar, our concentration will be on X2 system. This is for both intraday and swing trading. If you go for X1 system, that is only for swing trading, which is no about 50 minutes time frame. So this system X2 will be useful both for intraday and swing trading. So you can go through this one. And there are small changes in the system, no, which are explained in this video. So what are those changes? I'll explain you. So in this one, you can see this is 1 minute time frame of Nifty. ये 1 minute का Nifty का spot का chart है ये. You can see no hash. Okay, 25,000, 21, 22 चल रहा. You can see in my trading terminal also. If you go to this one, you can see 25,019 on the top. You can see here. So 20, 25 it is running. ये spot का है और ये 25,082 is the futures. Okay. So we will take signals only from spot chart. Okay. If you want, no, you can even open charts. Futures का भी chart open कर सकते हैं आप. You can see here, no, you will get data feed of lot of instruments. NSE cash, NSE futures, MCX, NCDX और क्रिप्टोस का डेटा मिलता, इंटरनेशनल मार्केट्स का डेटा मिलता, फॉरेक्स का मिलता. So whichever instrument you want, you can open. But basically हम ये we will take signals from spot chart, not futures chart. Futures का chart में भी similar signal रहता है, but why we take like this means expiry के दिन क्या होता, for example, no, monthly expiry होने के बाद में next day morning chart get disturbed because of the premium. जुलाई मंथ का और अगस्त मंथ का जो फ्यूचर्स का डिफरेंस है उसमें प्रीमियम रहता, दैट इज रीजन नो हम स्पॉट चार्ट से ही वी विल टेक सिग्नल्स. तो इसमें देख लीजिए इन 1 minute टाइम फ्रेम in X2 system, in 1 minute time frame, if you want to take a sell signal, there must be two red color symbols. Earlier we used to take only one symbol. Right now we are taking two red color symbols. We have made some changes in the system, so we need two red color symbols. Two red color symbols may be two arrows or two aeroplane symbols. You can see, no, this is aeroplane, this is arrow. Okay, these are main signals. Okay, aeroplane and arrow are main signals. And you can see this phone symbol, this is pullback symbol. So this is sub signal, or you can that is not for main trend. So this is for main trend. This arrow and aeroplane are for main trend. So two signals must come. Either two arrows must come, or one arrow, two aeroplanes must come, or one arrow plus one aeroplane may come. It can be on different candles. No, there is no rule that no on one candle only you have to get that signal. For example, you can see this is the day separator. So this is the today's moment. Okay, starting of the day. So this is 1 minute chart, means every candle will be 1 minute time frame. So yesterday itself we got a sell signal, but no, only one arrow was there. So this is not valid. So today morning you can see we got arrow plus aeroplane both here. Even if aeroplane does not come, this will be valid signal. So here you got two signals. So this is the selling area, 25,000. Whatever is the price. Now I'll just place my cursor. 1 second. 25,093. So 25,093, you got a sell signal, and now Nifty is at 25,022. And one important disclaimer: see, this particular webinar, no, we are showing you, we are conducting live webinar to show you features of this particular software.
This is not for tips. We don't have any tips business. We don't have any advisory business. हम यहाँ पे tips नहीं देते आपको, यहाँ पे buy करो, वहाँ पे buy करो बोल के नहीं बोलते. So don't take trades based on our webinar. Why? Because see, this will be only of 2 hours webinar. No, 12 o'clock this webinar will be over. So after 12, what happens you never know. So it may give you 1,000. Of course, 1,000 points will not happen in Nifty, but what happens afterwards you don't know. No, it may give you one buy signal. It may give you one big pullback. Okay, where signals are coming you will not be knowing. So don't copy trades here. Don't take whatever signals that are coming. Don't take as trades. Okay, this is purely for explanation purpose, training purpose, not for any tips or advisory. And we don't have any tips or advisory business. We sell only software. Okay, so that is important disclaimer. And one more point is don't depend upon anybody's tips. No, if you want to be your own boss, follow some software, whether it is my software or somebody's software. Follow some software which is rule-based system. X2 is 100% rule-based system. Our X1 is also rule-based system, but that is complicated. Okay, not so complicated, but comparatively complicated. So X1 is for experienced traders, for swing traders. X2 is for everybody. Simple rules are there here. You can see live markets, live rates are changing here from 25,093, 98, almost 80 points profit is there. So 75 into 80, around 5,000 profit for one lot. So this is going on. No, this is not for just intraday. Okay, not only for many people are looking for softwares which give signals. No, here यहाँ पे buy चाहिए, यहाँ पे sell चाहिए, यहाँ पे buy, यहाँ पे sell. That kind of thing. No, हमारे पास है, but this is not that kind of system. So if you want to have scalping type of system, that is different. This is for short swings. Okay. Generally, in X2 system, once you get a signal, it will last for 2 to 5 days. If it is a very small trade, probably same day itself trend may change. But generally, what I observed is this system, X2 system signals will last for 2 to 5 days. So you got a sell signal today, so this will last for 2 to 5 days. It may be 3 days, it may be 4 days, it may be 5 days, that I don't know. But system signals will be like that. I'll just show you other charts also. 1 second, let me show you this Bank Nifty. See, Bank Nifty sell signal we got yesterday. Okay, today morning we got gap down, but yesterday itself we got sell signal. And there is one filter here. So this filter shows buying pressure and selling pressure. If it is in green color, it is buying pressure. And if it is in red color, it is selling pressure. So signals will not come depending upon this one. But after we have taken entry, if this is not supporting, next 30 minutes candle will be our stop loss. So that will be explained to you once you take software. So here you can see, yesterday we got a sell signal, and this filter is satisfied. No, filter has become red color, and this is valid signal around whatever is the price. No, I'll just zoom the chart. So sell signal has come at 56,800. Okay, from 56,800, now we are at 56,460, 470. This is running. No, this trade is going on. Let it continue. And one more important point. No, if you are trading in market, we have got 5 indices: Nifty, Bank Nifty, in Nifty, Mid Cap Nifty, and Sensex. Of course, Nifty and Sensex will be similar type of signals will come. So Bank Nifty represents banks, Fin Nifty represents the financial institutions, and Mid Cap Nifty represents mid caps. Okay. So out of these 5 indices, whichever index gives you first buy signal, that is strong index. If it is giving you first sell signal, that is weak index. So out of these 4, you can see Nifty has given you sell signal today. Bank Nifty has given you sell signal yesterday. Sensex has given you, let me show you Sensex chart. Sensex has given you sell signal yesterday. Okay, you can see 2 symbols have come. See, in Nifty, 2 signals were not there. Only 1 signal was there. Let me complete everything in English, and then I'll come back to Hindi. Otherwise, it will mix. Okay, so let me complete in English about this entire introduction part. So in Nifty, in Sensex, we got valid sell signal yesterday itself around 81,200. Sorry, not 200. 1 second. 82,284. So 82,284 is where we got a sell signal, valid sell signal. From there, you can see almost we are down 300 points. And Bank Nifty, Sensex gave you sell signals yesterday.
Nifty has given you sell signal today. Fin Nifty also has given you sell signal today. Of course, no, there was one sell yesterday, but we want second arrow, so second arrow has come today. But mid cap Nifty has given sell signal yesterday morning. When Sensex has given you yesterday evening, not evening, no, around 2:33 o'clock, whatever it is, no, afternoon session, mid cap Nifty has given you buy signal much before Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Sensex. That means mid cap Nifty was weak of all these indices in this particular no swing. Okay, so you can see no this one where you got sell signal here. Earlier buy signal was going on. I'll just show you. Let me remove this auto scroll. So earlier we had a buy signal mid cap Nifty. Here you can see, no, there were two green color arrows, one arrow and then second arrow somewhere here around 13,160. Exact price, if you want to know, I'll just place my cursor here. So 13,173. So from 13,173, buy signal was going on, and then afterwards you can see there was one pullback symbol. This phone symbol is a pullback symbol. So this is no very important signal if you are trading futures or options. Particularly for option trader, this is very important signal. Why? Because no, it shows you lowest point in the this one no pullback. See, market has come down, but our software is telling you to take a buy position. Okay, this particular signal is for buy. Okay, pullback buy, and there's a star symbol here, and this is confirmation. Okay, this is a signal pullback area. It is identifying pullback area, and this is pullback confirmation. So how to use this means, see, when market is falling, you know, this has given almost at bottom, not at bottom, but near to the this particular swing. So when market is falling, you will not be having that much courage to take buy signal here. So if you are afraid to take position here, you can take no this one entry here. So if you are afraid, then only you use that one. Otherwise, no, directly take no signal whenever this particular no phone symbol comes. And all these are non-repainting signals. So once the signals form on the chart, it will not disappear. No signal will disappear. All are non-repainting signals. So I'm writing here, so you need not worry about repainting. All signals in our X1 and X2 all are non-repainting signals, and even in our X3, X5 also non-repainting. Only X4 we need reloading, but in X1, X2, X4, sorry, X3, X5, all are non-repainting only. So once signal forms, you will not be signals will not be disappearing. So here we got a pullback. Now you can see live. You know, when market was falling, that signal might have come has come here. So if you have taken here, no, immediately you got profit. So this is best point for option traders. So buy signal was your main buy signal. So as many pullbacks as you get near to your main buy signal, take those signals without any hesitation, because you will not get pullbacks no so easily. So the signal will not come each and every time. You can see no one more pullback has come here, but it is too far. See, original buy signal was somewhere here, and this pullback has come somewhere here. So I don't prefer this one. Still, it has given you some money. See, when you buy pullback here, this is the target. So main signal target will be plus symbols, but pullback signals target will be previous high. So from 13,170, it went up to 13,000. What is the highest point here? It went up to second, third target also. Let me see the price here. 13,400. Okay, so around 200 points profit. That means 24,000. 120 is a lot, no, in mid cap Nifty. So right now you can see here yesterday and after this one, no, this particular type of no consolidation, you got no. Here also you can see pullback signals have come, but as I told you, I prefer pullbacks only near to the entry price or first pullback. First pullback is best pullback, second pullback is good pullback, third pullback is okay pullback. So pullback trading is discretionary. So if you are okay with reversing, no, if you are ready for reversing, for example, if you have taken some buy signal here, if you have taken a position, you must be ready to take reversal if sell signal comes. Otherwise, if you're a scalper, this is very good point. Now immediately you'll get some points. So how to use this one, it's up to you. And it is giving you excellent, you know, points where you can take option position also. Immediately scalping also, you can use this one. So here you can see we got a sell signal and the sell signal price. Let me show you. So you are getting, you know, this one, no, alert message is coming. HIL 10:15 is the time of my laptop, and the downtrending zone started. This is X1 system signal. Downtrending zone, uptrending zone will be
in X1 signal. So I'll show you that also. HAL chart I'll show you. Crompton gives a CG power cell and CDSL cell. Those signals I'll show you. But this particular webinar is for X2. So let me show the price here now. Mid cap Nifty sell signal has come at 13,312. So from 13,312, now we are at 13,190, almost 120 points profit in this one. So around 12,000, 14,000 profit in this one already. So this trade is going on, and how to see the targets? No, second, this is the, see, for every arrow you'll be getting plus symbols. First and second targets will be like this. Third also will be there, but third will not come so easily. So either target for second target or half of this one is good point to take no part profit. So if you have got two lots, no, at least book part profit at this one, no, midpoint of first and second targets, and remaining portion you can this one, no, continuously what you call, no, you can modify stop loss and then trail stop loss for first target. Now you can keep trail stop loss to first target, or no, this area where this kind of some small swing has come. So like that, no, suppose if one more swing forms, no, there you can shift your stop loss. But first target, try to book at least 50% of the portion, try to book. So this is about this system. So entry I have told you, just stop loss I did not tell you. So when you have sold here, stop loss will be this one. So stop loss must be with double quantity. So in this system, let us go to Nifty chart. Nifty chart. Okay, it has fallen another 30-40 points. So in Nifty chart or any chart, no, see entry when you get valid buy signal, valid means no, in 1 minute time frame you want two, and in all other time frames we want only one signal. Suppose if you are trading 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, no, there are different templates, but that only one signal will be enough. So when you get valid buy signal, we will buy. Okay, when you get valid sell signal, we will sell. If stop loss hits, we will reverse the position. If stop loss hits, what we will do? We will reverse the position. See, today morning we got a sell signal. Okay, in this sell signal, we don't know what will happen. Okay, it may go down or it may come up. Will give you some pullback symbol. Otherwise, no. After some time, it may reverse. Okay, anything can happen in market, but no system is telling you that there is a sell signal. So you must be ready for everything. Now, suppose if a big news comes, no, probably we may get no stop loss may hit and it will go up. So if stop loss hits in this system, it will reverse the position. Right now, you can see in live market in front of your eyes. I am showing you 1 minute time frame chart where nobody can show you this kind of accuracy. You can check almost all YouTube live streams or whatever videos that are coming in YouTube. They'll show you 15 minutes time frame chart, 30-minute time frame chart, daily chart, 1 hour chart. They'll ask you to draw 100 lines like this, support, resistance, with support resistance. If market moves, then there will be no indicators, there will be no softwares, there will be only one software, which was first software. I think Metastock was the first software. Okay, I think 25, 30 years back it has come. So only that software might have been there. Okay, so software only support and resistance will not work in market. So you need a strong system to make money in this volatility. So if you don't have good system, you will be disappearing from market. Your capital will be wiped off. So you must have very good strong system, and you can see mid cap Nifty X2 sell signal has come. So whenever you get a signal, you'll be getting alert message. So you need not open any chart. For example, here you can see I've got a lot of charts open. I'll show you all other charts. So this is the introduction part. Right now, this is over, and Bank Nifty chart see once. It is also going down. Sensex going down. Okay, you can see this was the sell signal yesterday. This is the day separator. Okay, today's moment, and then Fin Nifty is also going down. Right, very good. Mid cap Nifty is also going down. 13,160. Actually, you got one more arrow here, but you should not do anything here because already sell signal was here, and from there sell is continuing. This is only continuation signal. This is not for fresh entry. So once you are in sell, what you will do? You will look for pullback symbols. Pullback symbols will be with phone, with this phone. Okay, phone symbol. Phone symbol has to come to take a pullback. That is discretionary. If it comes to near, we will take. Otherwise, if it is coming too far, we will see. We will use our little bit of logic whether to take it or not, because
I prefer pullbacks only near to the entry price, or first pullback I'll take one chance. And if you're option trader, that will be excellent, tool. No, pullback signals will be excellent tool. You can check other charts and other videos also in our website and YouTube channels. I've explained a lot of live examples there. So this is about Nifty Bank Nifty, and this one X2 system chart. And let me show you X1 system. This is our X1 system. Okay, it is no little bit of complicated. Complicated in the sense, no, don't get afraid of this one. Not so simple like X1 system. So here in this, no, every arrow is not valid. All arrows are not valid. In X2 system, all arrows are valid, and we'll be taking buy or sell depending upon the color. Okay, but here all arrows are not valid. This is not valid. This is not valid. This is valid signal. Trigger somewhere here around 25,400. So from there, 400 points profit. It is in downtrending zone now. So this kind of analysis is there. So every arrow is not valid here. So I'll show you some other charts now. If you press Control Tab, okay, if you press Control plus Tab in your this one, no, this one keyboard, then charts will change. First, let me check my positions once now. 325, 165, 65, 118, 138, 118, 138, 45, 65. Okay, so I'll show you different charts now. Just you can just have a glance now. This is Nifty chart, mid cap Nifty. I'm pressing Control plus Tab. I'm not using mouse here. I'm pressing Control plus Tab. So with just keyboard, you can operate this one. Achha, this is Axis Bank chart. You can see now results have come back for this one, and there is a 5% or 6% some gap down is there. See, yesterday it was at 1160. Now today morning there was a big gap down, but we had this red color zone. As long as this red color zone is there, stock will come down. Okay, as long as this is in pink color, there will be gap downs. If you get a gap up, that is a good point to take a short position. So in this one, what is the meaning of this particular green color ribbon? It shows that no, this is in downtrending zone. So in downtrending zone, all pullbacks are shorting opportunities. You should not take any long signal. Downtrending zone indicates that there is a big trending down possibility. So in this one, sell signal was there in our system at this point. Okay, whatever is this point, no, approximate price 1211. Okay, from 1211 now we are at 1111. So in between, as I told you, all are not valid here. This is invalid. This is invalid. Though you got sell signal in this red one, it is invalid. Why? Because already this signal is going on. So from 1211 we had a sell signal. So after this consolidation has come down and you are not trapped in this consolidation, so 100 points profit in this chart. So this is the X1 system. You need a little bit patience for this one. Let us see next chart, Aravinda Pharma. Achha, this is our X5 system. This is no different, not possible to explain here, but this will show you probable top, probable bottom. Okay, this is good for scalpers. So if you are interested, you can use this one. Next is Sensex chart. Here also you can see this is not valid. This is not valid. This is valid. Here sell signal triggered on breakout down of this one. No, 83,100. So from 83,100 we have sell signal. Now it is at 81,756. And next one is Nasdaq. You can see Nasdaq. Every day it is going up. You can see the
Sorry, got an important call. Just a second. So you have ribbon here, no? Whatever is the name of this stock, no, that is not our concern. So in Nasdaq chart, we have a green color ribbon. So Nasdaq chart in our X1 system, no, this ribbon is telling you that big trend will come. So from 22,000 now it is at 23,000. So in between all these are invalid signals, as I told you in this system. We have rules. Okay, so all arrows are not valid. So this webinar is not for this one. There are a lot of videos in our channel. You can go through that. No, in this channel there are a lot of videos. No, website and channel. So you can go through that. Not possible to explain now. So this system, just now have a look at the charts. Now this Bank Nifty X5 system, and this is in Dow Jones chart. Bank Nifty, this one, no, X1 Container Corporation. Okay, 15 minutes time frame chart. Let us see. This is in downtrending zone. Mid cap Nifty, Sensex, Fin Nifty, Gold, mid cap Nifty, crude oil, silver, HAL. Okay, in HAL, no. Morning, no, there was an alert here, so downtrending zone started here. Also, you can see this was a viral sell signal, and from there, the sell is continuing from whatever is this price, no, from 49.43. So from 49.43 now it is at 4700. So you can see how what is happening in this one. Voltas buy, Bitcoin buy, Bank Nifty, Nifty, M&M buy, CDSL sell is coming, Polo Tides. Nifty. Okay, so we will not discuss all those things. This webinar, let us keep only for this one, no, X2 signals. So you might have understood. I've explained you entry, stop loss, exit, and if stop loss hits, we will reverse the position. So this is about this system, and अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ, देख लीजिए. ये सिस्टम X2 सिस्टम इज फॉर इंट्राडे. X2 सिस्टम से आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं और पोजिशनल में भी काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इससे. तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए गो फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट. इंट्राडे में अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करें तो इसमें जनरली 2 to 5 डेज का ट्रेंड आता. तो 2 to 5 डेज में आपको बीच में पुल बैक्स आता. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो ना, इसमें देख लीजिए एरोस आर देयर. एक एरोप्लेन है और एक फोन सिंबल. एरो और एरोप्लेन जो है ना, ये मेन सिग्नल्स है. एरो और एरोप्लेन जो है ये मेन सिग्नल्स है. और ये फोन सिंबल और स्टार सिंबल, फोन प्लस स्टार जो है ना, ये पुल बैक सिंबल है. तो मेन सिंबल जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम में 2 सिग्नल्स आना चाहिए. एक आए तो नहीं चलता. 2 सिग्नल्स बोल तो क्या आ सकता, 2 एरो आ सकता, नहीं तो 2 एरोप्लेन का सिंबल आ सकता, नहीं तो एक एरोप्लेन और एक एरो आ सकता. तो एक आए तो जल्दबाजी में आपको चलो सेल नहीं करना चाहिए. बहुत बार एक आने के बाद में फिर ऊपर चले जाता. तो 2 के लिए वेट कीजिए, कहीं भी नहीं जाता मार्केट. अभी 30-40 पॉइंट जाने दीजिए. 30-40 पॉइंट के ऊपर सेल करना, में टॉप को पकड़ना, बॉटम में बाई करना, वो नहीं होता. वो इम्पॉसिबल है. वो कोई आपको बोल रहा है कि टॉप में बाई सेल करो, बॉटम में बाई करो, वो नहीं होता. ओके, अगर ऐसा है तो अभी हर आदमी टाटा बिरला बन जाते थे ना. अब तक बिल गेट्स बन जाते थे, नहीं तो क्या बोलते वो टेस्ला का, उसका नाम नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो बन जाते थे ना. सो टॉप एंड बॉटम कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है. खाली टॉप में सेल करो, बॉटम में बाई करो, आप एक साल में यू विल बी बिकम नो बिलियनर. ठीक है. सो वो टाइप ऑफ सिस्टम, देयर इज नो सिस्टम. ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है मार्केट में. जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज हाईएस्ट एक्यूरेट सिस्टम. और किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं, नॉट ओनली इंडियन मार्केट. एक्चुअली ये जो सिस्टम है ना, दिस फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स. तो इसमें आप निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, फिन निफ्टी करो, स्टॉक्स करो, कमोडिटीज करो, गोल्ड सिल्वर क्रूड, इसमें भी काम करो, नहीं तो एनसीडीएक्स में जाके जीरा चना, इसमें काम करो. जो इंस्ट्रूमेंट में मार्केट है, एक्सचेंज है, जो इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी है, वो इंस्ट्रूमेंट में आपको दिस विल गिव यू एक्सेलेंट एक्यूरेसी. तो इसका एक्यूरेसी दिखाने के लिए हम ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं. और ये वेबिनार में जो सिग्नल्स आता, आप ये नहीं लेना चाहिए. क्यों बोले तो ये 2 आवर्स का वेबिनार है, 12 के बाद में वेबिनार नहीं रहता. तो डोंट टेक सिग्नल्स बेस्ड ऑन ये जो वेबिनार में जो दिख रहा है आपको, जाके 100 लाख सेल करना, बाई करना, वो टाइप ऑफ थिंग नहीं करना. क्यों बोले तो 12 बजे के बाद में क्या होता आपको मालूम नहीं है. क्यों बोले तो सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपके पास नहीं रहता. तो क्या सिग्नल आया यहाँ पे देखो, ये बॉक्स आता आपको वेन एवर यू गेट सिग्नल. वोल्टास में सेल है और अरविंद फार्मा सेल है. बैंक निफ्टी में रॉकेट सेल सिग्नल. ठीक है, ये XY का सिग्नल है. ठीक है, ये ऐसा आते रहता. जो चार्ट आप यहाँ पे रखे ना, जितने भी चार्ट्स आप यहाँ पे रखे, वो सब चार्ट्स में सिग्नल्स आ गए तो ऑटोमेटिकली आता. नो नीड टू सी
हर एक चार्ट में जाके बार 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 देखने की जरूरत नहीं है। और जब इवनिंग ये बंद करते हैं ना 3:30 को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सॉफ्टवेयर ओपन करते तो ऑटोमेटिकली ये सब चार्ट ओपन रहता है। आपको ट्रेडिंग व्यू जैसे जाके हर चार्ट को ओपन करना, हर चार्ट को देखना, वो सब नहीं रहता यहाँ पे। तो एक बार सेट करो और डेली सिस्टम आपके सामने आ जाता, और जो सिग्नल है वो सिग्नल में आप काम कर सकते हैं। तो इसका रूल्स क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में दो सिंबल आए तो सेल करते, रेड कलर सिंबल आए तो सेल करते, ग्रीन कलर सिंबल आए तो बाई करते। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल एक आया था, आज एक आया था, तो यहाँ पे सेल है आज मॉर्निंग, और इमीडिएटली सेल करना, स्प्रेड गिड कुछ भी नहीं। और जब सेल करने के बाद में एंट्री तो आपको समझ में आ गया। एंट्री के बाद में स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग है जो रहता है उसके ऊपर एक 20 पॉइंट, निफ्टी को 20 पॉइंट रखिए और बैंक निफ्टी को एक 50 पॉइंट रखिए। ऐसा रखिए, क्यों बोलते उसके पहले ही बाई सिग्नल आता, बट कभी कभी शार्प मूवमेंट आए तो वो स्प्रेड आपको बचाता। सो एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। और स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई के ऊपर, यहाँ पे स्विंग है क्या है, प्रीवियस जो सिग्नल था ना उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है, इसके ऊपर आप 20 पॉइंट रखिए, 25,250 जो भी है। तो एंट्री आपको ये क्लियर है, स्टॉप लॉस भी क्लियर है। और एग्जिट कैसे करना बोल तो देखो, यहाँ पर टारगेट्स दिया मैं, ये प्लस सिंबल से टारगेट्स। तो इसमें एरो आते ही आपको टारगेट्स आता, प्लस सिंबल आता, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस रहता। तो ये जो टारगेट्स है ना, जनरली मैं ये सेकंड के लिए देखता हूँ, हर बार आता बोल के नहीं है। अगर सेकंड तक आपके पास X1 है तो ये मालूम होता है कि कौन सा बड़ा है बोल के, ठीक है। बोल तो मेरा ये क्या है बोल तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देख लीजिए। X1 सिस्टम रहना बोल के नहीं है। तो अगर ये है तो, ये है तो आपका एडवांटेज क्या बोल तो देख लीजिए, इसमें डाउन ट्रेडिंग जोन चल, डाउन ट्रेडिंग जोन में, डाउन ट्रेंडिंग जोन बोलते हो क्या है, अप ट्रेंडिंग जोन में मार्केट ऊपर ही जाता, डाउन ट्रेंडिंग जोन में नीचे ही जाता। नीचे ऐसा सीधा नहीं जाता ना भाई, हजारों पॉइंट नहीं गिरता। तो बीच में क्या होता है, ऐसा नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऊपर जाने के प्रोसेस में छोटा टारगेट्स आता, नीचे जाने के टारगेट्स में बड़ा टारगेट आता। तो इसमें कौन सा वेव बिग है, डाउन साइड का जो सेल वेव्स है ना ये बिग है। तो इसमें फर्स्ट टारगेट आता, इसमें सेकंड भी आता, थर्ड भी आता, या 1.5 फर्स्ट टू सेकंड के बीच में आता। सो ऐसा आप थोड़ा लॉजिक यूज करो तो बेटर है। बट ये सिस्टम रहना बोल के नहीं है, क्यों बोल तो ये थोड़ा आपको समझना चाहिए, इतना इजी नहीं है। अगर आप पुराना चार्ट देख के समझो, इसके पहले ये क्या था भाई, इसके पहले ये अप ट्रेंडिंग जोन था। तो इसमें देखो ये बाई स्ट्रांग है, और ये बाई स्ट्रांग है, फिर ये बाई स्ट्रांग है, फिर ये बाई स्ट्रांग है, फाइनली कहीं ना कहीं तो एक बार नीचे आता ना भाई, कभी ये लाइफ लॉन्ग ऊपर ही नहीं जाता किसी भी स्टॉक। तो इसमें ऑल एरोस आर नॉट वैलिड, बट इसका अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ये है तो आपको मालूम होता ना, तो कम से कम आप क्या करना बोलो तो इसमें फर्स्ट टारगेट आए तो एक, सॉरी ये 1.5, ये दोनों का बीच में पॉइंट तक आ गए तो एक 50% पोजिशन आप एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो, फिर उसके बाद में मॉडिफाइड स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर ऊपर आए तो यहाँ पे पुल बैक का सिंबल आता, फोन का सिंबल आता, फोन का सिंबल जैसा यहाँ पे आ गया ना आपको। जब मार्केट नीचे आया था फोन का सिंबल आया, फिर वहां से ऊपर चले गया। कल गैप डाउन था, परसों गैप डाउन था मार्केट में, तो इसमें पुराना जो बाई सिग्नल चल रहा था इसमें गैप डाउन था। एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो। हाँ, जो बाई सिग्नल चल रहा था इसमें ये पुल बैक का सिंबल है, प्रॉफिट दे दिया, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता। तो फाइनली ये आपको यहाँ पे सेल में आ गया। बट इन स्पाइट ऑफ दिस मच वोलेटिलिटी, इसमें मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड, आपको ऐसा दिख रहा होगा चार्ट, बट ये 1 मिनट का चार्ट है ना, ऐसे रहता। तो इतना वोलेटिलिटी में देखो, 200 पॉइंट नीचे आ गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे ऊपर नीचे हुआ। बट इसमें आपको देर आर नो फेक सिग्नल्स, यहाँ पे फेक नहीं है, फॉल्स सिग्नल्स नहीं आ रहा। तो ये आपका ये सॉफ्टवेयर का स्ट्रेंथ है। तो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो आप बाई सेल करते रहते, अल्टीमेटली आपका कैपिटल उठ जाता। तो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स करना चाहिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स करो तो आपको ब्रोकर को रिच बनाते हैं आप। तो सिग्नल आते ही काम करना, इसमें नो सिग्नल नो ट्रेड इज अवर पॉलिसी। अगर सिग्नल नहीं आए तो नो ट्रेड, नो सिग्नल नो ट्रेड। और इसमें एंट्री आपको समझ में आ गया होगा, और स्टॉप लॉस भी आपको मैं बोल दिया, और एग्जिट में आपको बोल दिया। और ऊपर आया तो पुल बैक सिंबल आता, फर्स्ट पुल बैक इज बेस्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक इज गुड पुल बैक, थर्ड पुल बैक इज ओके पुल बैक। पुल बैक देख लीजिए, जितना नजदीक अपना एंट्री प्राइस है उतना नजदीक नो पुल बैक है तो अच्छा है।
जाके यहाँ पे एक 400 पॉइंट के बाद में एक पुल बैक है तो लीव इट ना भाई, मार्केट कहीं भी नहीं जाता, दूसरा अपॉर्चुनिटी में फिर काम कर सकते हैं। सो जितना नजदीक आता उतना बेटर है। सो देख लीजिए, फर्स्ट पुल बैक तो कर सकते हैं कहीं भी आए तो, बट कहाँ पे बाई सिग्नल आया, कहाँ पे सेल सिग्नल आया बोल के देखना चाहिए। सो व्हेन यू हैव सेल सिग्नल वी विल टेक ओनली पुल बैक सेल सिग्नल्स। एंड इसमें कहाँ तक जाता है वी डोंट नो। सेल सिग्नल आया था कहाँ पे, 24,000, सॉरी एक बार मैं देखता हूँ, 25,098 शायद, 25,000, 25,093। सो 25,093 में सेल सिग्नल आया था यहाँ पे, कंफर्मेशन आज मॉर्निंग आया था। और अभी क्या चल रहा, 24,950 चल रहा। तो कितना, 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इंटू 75, तो कितना होता, एक 10,000, 12-13,000 जो भी है। अभी तो ट्रेड चल रहा, अब ट्रेड कंटिन्यू खत्म नहीं हुआ। सो ये निफ्टी का है। अच्छा, और एक पॉइंट क्या बोले तो इसमें देख लीजिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सेल करें, आप स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम रिवर्स करते हैं विदाउट हेजिटेशन, विदाउट कुछ भी सोचना नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा तो रिवर्स करना, रिवर्स करने के रेडी है तो ही आप मार्केट में सर्वे हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। अगर रिवर्स करने में आपका दम नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं तो चले जाओ, मार्केट में नहीं रहना चाहिए। छोटा कैपिटल से मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा कैपिटल लेके आ जाइए मार्केट में, विल गिव यू बेस्ट सिस्टम। सो रिवर्स हुआ तो, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो रिवर्स करके रिकवर करने का दम रहना चाहिए आपको। क्यों बोलते हो, ये सिस्टम जो हम बनाए सो है ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉस रिकवरी। ये सिस्टम में लॉस को मिनिमाइज कैसे करना वो मेन इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 10 ट्रेड्स, लेट अस अज्यूम दैट यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड में लेट अस से 7 ट्रेड या 8 ट्रेड सीधा आ गया बोल के अपन अज्यूम करेंगे, तो 7-8 ट्रेड्स में को स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे आ जाता, जो भी है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 डिपेंडिंग अपॉन दी दिस वन नो ट्रेंड। अगर 2 या 3 ट्रेड फेल हुआ समझो, रिवर्स करके उसको जीरो करो ना, उसमें लॉस रिकवर करो, ये 7-8 ट्रेड्स का प्रॉफिट तो आपका अकाउंट में रहेगा। तो लॉस को रिकवर अगर आप कर सके तो मार्केट में यू विल बी द किंग ऑफ मार्केट। सो वो बेसिस पे लॉस को कैसे रिकवर करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इन दिस नो ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो, X1 X2 वगैरह यूज करें तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना बोल के हम आपको ट्रेनिंग में बोलते हैं। अगर X2 प्लस गुड कैपिटल यू विल बी सक्सेसफुल नो ट्रेडर, X2 प्लस गुड कैपिटल प्लस मल्टीपल अकाउंट्स है तो यू विल बी किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको ट्रेनिंग में बोलता हूँ, बट थोड़ा आप याद रख लीजिए इसको। ठीक है, तो अभी तो सेल सिग्नल चल रहा। अच्छा, वन मोर पॉइंट क्या बोलते हो, निफ्टी में देखो कल एक एरो आया था, तो एक एरो आते ही सेल नहीं करना। देर इज नो गारंटी दैट ये एरो आने के बाद में फिर ऐसा नीचे आता बोल के, और बहुत बार ऊपर भी चले जाता। सो दो एरो आते ही काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना। और उसके बाद में पॉइंट आई वाज रेडी टू से दिस वन नो, दिस इज द मेन पॉइंट। सी आपके पास नो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, ये 4-5 इंडेक्स है। तो ये 5 इंडेक्स में जो इंडेक्स में फर्स्ट सेल सिग्नल आ रहा वो सेल, वो इंडेक्स वीक है। एक सेकंड, थोड़ा आवाज आ रहा। सो फर्स्ट सेल सिग्नल जिसमें आता दैट इज वीक इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट बाय सिग्नल जिसमें आता, अगर ये 5 में सेल चल रहा समझो, और उसमें फर्स्ट बाय सिग्नल जो इंडेक्स में आता दैट इज स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। सो इसमें निफ्टी में देखो आज सेल आया, बैंक निफ्टी में कल सेल आया। ठीक है, कल 3 o'clock टाइम में सेल आया। ये जो है ना, ये लाइन वर्टिकल लाइन जो है डे सेपरेटर, ये आज का मोमेंट है, ये कल का मोमेंट है। और नीचे जो फिल्टर है इससे सिग्नल्स नहीं आता, इट शोस यू बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। तो इससे आपको सेल बाय नहीं करना चाहिए, दैट इज ओनली फॉर कंफर्मेशन। और वो सपोर्ट नहीं करा, अगर नहीं कर रहा तो क्या करना वो भी मैं आपको ट्रेनिंग में बोलता हूँ। अभी सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी कल सिग्नल आया। तो निफ्टी में कब आया सिग्नल, यस्टरडे, सॉरी निफ्टी में टुडे। बैंक निफ्टी में कब आया था, यस्टरडे, कल आया था। और सेंसेक्स में कल आया, कब आया था, यस्टरडे। और फिन निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज आया। ठीक है, टुडे, ये दोनों भी टुडे है, ये दोनों भी टुडे है। ठीक है, और मिड कैप निफ्टी में कल मॉर्निंग आया। ठीक है,
कल मॉर्निंग यस्टरडे मॉर्निंग आया। बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में तो 3 o'clock टाइम में आया था, बट मिड कैप निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए कल मॉर्निंग सिग्नल आया। तो सबसे वीक कौन सा है भाई? सबसे वीक मिड कैप निफ्टी था, इसलिए ये पहले सिग्नल दिया सेल। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेटस से एक अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, आप कौन सा स्टॉक में, कौन सा इंडेक्स में ज्यादा नंबर ऑफ लॉट्स में काम करना, इसमें काम करना, और कौन सा इंडेक्स में कम नंबर ऑफ लॉट्स में सेल करना चाहिए, निफ्टी में करना, और फिर निफ्टी में करना। क्यों बोलते निफ्टी? निफ्टी आज दिया, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दीजिए सेल करने के लिए, और सेकंड प्रेफरेंस अगर आप सेंसेक्स में काम करते तो सेंसेक्स में कीजिए, ना तो बैंक निफ्टी दीजिए। बाद में आया था, लास्ट में आपको निफ्टी फिर निफ्टी आया, नहीं गिरता बोल के नहीं है, ये भी गिरता, बट कंपैरेटिवली देखें तो ये ज्यादा गिरता। देखो इसमें 20,000 120 का लॉट साइज है, तो इसमें ऑलरेडी 24,000 का प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे निफ्टी में आए तो शायद आपको इसमें 12-13 हज़ार कुछ प्रॉफिट आया होगा। अभी तो चल रहा, ट्रेड चल रहा, तो इससे ज्यादा ये गिर सकता, मिड कैप से ज्यादा ये गिर सकता, बट थियोरेटिकली थोड़ा लॉजिकली आप सोचे तो जो इंडेक्स पहले बाई देता सभी में, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको और एक भी एग्जांपल दिखाता हूँ, देख लीजिए मिड कैप निफ्टी में इसके पहले सेल सिग्नल, बाई सिग्नल चल रहा था। कहाँ पे था सेल सिग्नल, बाई सिग्नल? यहाँ पे था बाई सिग्नल। इसका डेट देख लीजिए 14 जुलाई। ये 14 या 11 तारीख, एक सेकंड, 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई के दिन बाई सिग्नल आया था। 14 के बाद में कल आपको 17 को सेल आया, 3 दिन चला ये, ठीक है। एज अ टोल्ड यू, एक बार सिग्नल आया तो 2 दिन से 5 दिन तक ये ट्रेंड चलता, बीच में आपको पुल बैक आया, दिस इज वेरी गुड पुल बैक। और ये बहुत बार नो, ये अपना बाई सिग्नल यहाँ पे था, जाके 200 पॉइंट के बाद में बाई सिग्नल आया तो थोड़ा अपन लाइट लेते उसको, अगर लेना बोल तो नहीं ले, डिस्क्रिशनरी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो बोल तो लेना चाहिए। रिस्क क्या है? रिवर्स हो सकता है ना, रिवर्स के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसमें पॉइंट क्या है, 14 तारीख बाई सिग्नल आ गया। तो 14 तारीख निफ्टी में देखेंगे भाई क्या चल रहा। 14 तारीख निफ्टी में आ रहा क्या बाई सिग्नल? आ गया क्या बाई सिग्नल? 14 तारीख नहीं आया, 14 तारीख नहीं आया। देखो 14 तारीख का मूवमेंट देखो, निफ्टी वॉज इन स्टिल सेल। सो सबसे पहले सेल्स बाई सिग्नल कौन सा दिया आपको? मिड कैप निफ्टी दिया। मिड कैप निफ्टी में 400 पॉइंट का प्रॉफिट आया था, और इसमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट आया। तो ये ऐसा कंपेरेटिवली आप ऐसा देखें तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड नो व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट। तो किसी भी वो लॉट ऑफ नो ये ऑप्शन चेन देख के पागल होने का जरूरत नहीं है। चार्ट में आपको एवरीथिंग इज विजिबल ना। ऑप्शन चार्ट में क्या रहता है भाई? ऑप्शन चार्ट में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन चेन देख के लोग पागल बन जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन चेन में क्या है भाई? मिनट टू मिनट ये चेंज होते रहता। आप देख के आप पागल बनना चाहिए। अगर इफ यू वांट टू बिकम मेंटल पर्सन नो, ये आप देखो, बार बार देखो क्या है इसमें, ठीक है, बोलो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, ये चेंज होते रहता। ये लास्ट ट्रेड पे चेंज होता, सॉरी स्ट्राइक पे चेंज नहीं होता, लास्ट ट्रेड पे चेंज होते रहता। अगर आप इसमें सेंसिबल में गए, समझो फॉर एग्जाम्पल सेंसिबल में गए तो वहाँ चले गए भाई, ये ऑप्शन बिल्डर में जाएंगे, बिल्डर में गए तो, ठीक है, सॉरी सेंसिबल नहीं होता, आपस्ट्रा है। सो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन चेन है। सो ये ऑप्शन चेन में एनएससी का ऑप्शन चेन में क्या रहता है आपको? एनएससी ऑप्शन चेन में खाली इसका आईवी आता, ओपन इंटरेस्ट आता, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब आता। ये मिनट टू मिनट चेंज होता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ना, ये 29,700, थोड़ी देर के बाद 29,800 होता, 900 होता, 30,000 होता, 31,000 होता। अरे क्या देखते रहे भाई? इतने डेटा देख के क्या करने का? इतना डेटा देख के पागल होते हैं क्या? ना तो ये क्लीन चार्ट नो जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप काम कर सकते हैं क्या? बोलो कौन सा इजी है? अगर इसमें आप मिनट टू मिनट देख के 29 तो ये 29 24 तो 950 वाला ऊपर गया क्या, नीचे गया क्या, इसका प्रीमियम कम हुआ क्या, नीचे हुआ क्या, क्या क्या की देखते रहते हैं ना भाई। प्रीमियम घट गया क्या, नहीं तो ट्रेंडिंग हुआ है क्या है, क्या क्या की देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा रहता है। यहाँ पे देखो, आई शो यू, चले गए भाई ऑप्शंस। मैं इसको खाली मैं यूज करता हूँ ओनली फॉर, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। मैं इसको ओनली आयरन फ्लाई के लिए यूज करता हूँ। मेरा जो आयरन फ्लाई चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। एक आयरन फ्लाई चल रहा 25,000 का आयरन फ्लाई, ठीक है, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस का आयरन फ्लाई। इसका ट्रेनिंग कोर्स है हमारे पास, इफ यू कैन ज्वाइन। तो इसमें क्या चल रहा भाई? अभी 9,048 रुपीज चल रहा। कहाँ पे है मेरा? यहाँ पे देखो 25,000 आयरन फ्लाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, 25,000, 25,000, 25,450, 24,700। देख लीजिए 4 लेग। और अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 25,000, 25,000 और 24,700, 25,450, 25,450 वही है ना, वही है 25,450,
25,000 एक बार देखेंगे, एडजस्टमेंट हो सकता है क्या ये? 92, 120, 120, 109, 129, 129, 109, 129, ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इसमें देखो ये 1 लॉट का कैलकुलेशन है। अगर आप इसको 10 करे तो 10 10 10 10 20 20 करे तो ये आपको यहाँ पर 10 लॉट्स करे तो प्रेजेंट प्रॉफिट 90,000 दिखता, ठीक है। अभी एक लॉट में 1,13,000 का कैपिटल भी यूज हो रहा है, बट जब आप लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 होता है। तो एक लॉट आयरन फ्लाई में काम करने के लिए यू नीड 1,30,000। एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा। सॉरी। सो एक आयरन फ्लाई लेने के लिए 1,30,000 जनरली इतना होता, क्योंकि तो ये मंथली आयरन फ्लाई है। अगर आप चाहे तो वीकली भी लगा सकते हैं। तो ये मैं लेके कब ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया ना, ये स्टार्टिंग वीक में लिया था मैं, तो एक्सपायरी के दिन लिया था, लास्ट मंथ का एक्सपायरी के दिन। सो 1,30,000 पे व्हाट यू गेटिंग है 9,000 रुपीज अभी चल रहा है। अभी इसमें कितना आने का है पोटेंशियल? 28,129 रुपीज आने का है। लास्ट कितना होता? 5,600। ये कब होता लास्ट? चलो ऊपर गए तो, अगर ये क्रॉस किया तो बोलो ये क्या है प्राइस? 25,375। अगर क्रॉस किया तो मुझे लॉस होने का चांस है, वो भी एल मिनिमाइज। सो एज ऑफ नो 9,048 चल रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख लीजिए इसमें ये भी चेंज होता डिपेंडिंग अपॉन द करंट प्राइसेस। रिफ्रेश किया मैं, अभी क्या चल रहा? 9,063 चल रहा, थोड़ा कम हो गया। तो अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे देख लीजिए मुझे कितना प्रॉफिट मिलता? 23,779 मिलता। क्लोज बोलता कब होता? ये एक्सपायरी का दिन क्लोज होता। तो ये चल रहा है, इफ यू वांट टू क्लोज नो, बट मेरा पॉइंट टू एक्सप्लेन इज, जो आयरन फ्लाई जो हम हमारे पास जो ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें इफ यू वांट टू मेक कंसिस्टेंट इनकम तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। सो इसमें भी हम ये गामा थीटा बीटा ये सब नहीं देखते भाई। ये देखना है तो बॉलीवुड हीरोइंस देखो। ये गामा थीटा बीटा देखे तो क्या मिलता तुम लोगों को? बोलो। थीटा बीटा गामा, ये आईटीएम, कॉल आईवी, कॉल डेल्टा, कॉल ओए, फुट डेल्टा, फुट ओए, क्या मिलता रे भाई? जाके बॉलीवुड हीरोइंस को देखो, ये नहीं तो हॉलीवुड हीरोइंस को देखो। ये देख के इतना प्राइस नीचे हुआ, उतना प्राइस नीचे हुआ। मैं आपको और एक दिखाता हूँ, देखो कहाँ चले गए ऑप्शंस। ऑप्शंस, बैक टेस्टिंग, सिमुलेटर, डैशबोर्ड, स्ट्रेटजी बिल्डर, कहाँ चले गए भाई? ये ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग, एक सेकंड, ऑप्शंस डैशबोर्ड, सेकंड है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट। चलो बहुत लोग इसको देखते हैं ना, मैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर ये दे बोल दो ये ओपन इंटरेस्ट, ये आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन, बट ये क्या मिलता तुम लोगों को? इसमें तुम क्या कर सकते हैं क्या? ये बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, आपको दिखा था क्या? मेरा चार्ट दिखा रहा आपको, सेल का सिग्नल यहाँ पे, सेल सिग्नल है 25,93 पे मेरा सेल का सिग्नल है। अभी इसमें आपको दिख रहा क्या कहाँ पे सेल सिग्नल है बोल के? और मिड कैप निफ्टी का सेम ये जो है, देखेंगे मिड कैप निफ्टी में क्या बता रहा है। मिड कैप निफ्टी में अगर किसी भी इंडिकेशन है क्या पे कहाँ पे सेल करना बोल के, तो मेरे पास क्रिस्टल क्लियर सेल सिग्नल है मिड कैप इंडेक्स पे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो तो, डेटा को यूज करो, बट डोंट बिकम मैड इन डेटा। ठीक है, ये चलते रहता है भाई, मिनट टू मिनट। यहाँ पे देखो ना, ये वॉल्यूम चेंज होते रहता है ना, ये यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होते रहता है। ये बिड एंड आस्क, ऑफ कोर्स ये तो चेंज होता रहता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता, ये सब चेंज होता रहता है। ये आप देख के मिनट टू मिनट, उसको देख के इसको देख के, कौन सा ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, किसमें घट रहा, किसमें बढ़ रहा, वो सब पागल वालों का काम है। इफ यू वांट नो विद सम सॉफ्टवेयर, इफ यू वांट कंबाइन डेटा, इट्स ओके, बट ओनली डिपेंडिंग अपॉन डेटा करना चाहो तो आपका मर्जी है भाई। अगर आपका 20, अगर आप 30 ईयर्स का है तो 40 साल में मर जाते कंटिन्यूसली इफ यू सी डेटा ऑप्शन टेबल, ये तो पक्का गारंटी है। अगर आप ऑप्शन टेबल से नहीं तो ऑप्शन का डेटा से ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपका लाइफ पीरियड 10 साल कम हो जाता। ठीक है, आपका मर्जी है काम करना नहीं करना।
इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर, ये सब छोड़ दो, कचरे का डिब्बा में फेंक दो, ये थ्रो इट इन डस्टबिन, ठीक है, कुछ भी नहीं है वो सब। अच्छा चार्ट पे आ जाओ, आराम से काम करो, बाई आए तो बाई करो, सेल आए तो सेल करो, बाई आए तो बाई करो, वैलिड बाई आए तो बाई करो, वैलिड सेल आए तो सेल करो, स्टॉप लॉस हुआ तो रिवर्स करो, टारगेट आए तो प्रॉफिट बुक करो, ट्रेडिंग करो, ठीक है, छोड़ दो बस ये। जाके उसको देखता हूँ, ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ, ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ, क्या क्या गिरा था और क्या है, ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और क्या क्या गिरा था भाई, देख सकते हैं, आपको पागल वालों का वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब में, एक बार देख लीजिए। ओके, सो दैट इज डिफरेंट टॉपिक। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऑप्शन में मैं भी काम करता हूँ, ऑप्शन में नहीं करना बोल के नहीं, यहाँ पे देखो मेरा पूरा ऑप्शन ही है, ठीक है, बट ऑप्शंस में काम करने के लिए मुझे मेरा सॉफ्टवेयर बस है, आई डोंट लुक एट, नो, अभी क्या आंखों के सामने मैं ओपन किया था ये ऑप्शन चेन, मैं आई नेवर सी दिस ऑप्शन चेन, ठीक है, एंड आई नेवर यूज दिस पर्टिकुलर, नो ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो सब नहीं देखता हूँ। मेरा जो एडजस्टमेंट्स है बेस्ड ऑन माई चार्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन एनी ओपन इंटरेस्ट, नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग। तो 9,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और एक आयरन फ्लाई चल रहा, ये 25,200 वाला आयरन फ्लाई है, इसमें 3,480 चल रहा, देखो प्रॉफिट मॉर्निंग था, अभी कितना है, 3,678 चल रहा। तो देखो यहाँ पे ये 21,000 का प्रॉफिट आने का चांस है, इसमें ऑलरेडी 3% का प्रॉफिट है, इसमें कितना है, इसमें 8% का प्रॉफिट है, चल रहा, चलने दो, क्या होता, कुछ नहीं होता। तो दिस इज व्हाट नो इज हैपनिंग, और आपको हमारे पास से क्या मिलता, एक्सक्यूज मी। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम आवर साइड, यू विल गेट बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स, ठीक है, बेस्ट सिस्टम्स फॉर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, और स्कैल्पिंग के लिए भी एक्स वाई है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेस्ट सिस्टम्स ट्रेडिंग के लिए आपको मिलता X1, X2, X5, X3, X4 में काम नहीं करता हूँ, हमारा ही सिस्टम है, बट यू विल हैव सम लिमिटेशन ना भाई, कितने सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं। सो यू विल गेट X1, X2, X5। X1 is for swing trading, X2 is for both intraday and swing trading, 2 to 5 days का एक swing चलता है उसमें। X5 आप scalping करना बोलते हैं, risk based system, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। और you will get X1 iron flay training course, if you are interested you can join that, and consistent income चाहिए तो without tension। important point क्या है, without tension, मार्केट ऊपर जाने दो, नीचे जाने दो, आपको सिखाते कैसे एडजस्टमेंट करना बोल के, नो टेंशन, आराम से काम कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, नॉट, नो, ट्रेडिंग शुड नॉट बी गेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज अवर मेन टारगेट, दैट इज द रीजन वी हैव मेड बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स। और मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा था, कौन सा है वो, सेकंड, ठीक है, बातों बातों में भूल गया मैं, ठीक है, दिस इज इंट्रो पार्ट अबाउट X2 सिस्टम। अच्छा, X5 सिस्टम दिखाने का था आपको, X5 को दिखाता हूँ, देख लीजिए, इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्नल्स आता, दिस इज एक्सपायर सिस्टम, लेट अस गो टू एक्सपायर सिग्नल फॉर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में देखो, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो सेल का चल रहा, अभी यहाँ पे ऊपर गए तो क्रॉस आए तो वहाँ पे सेल कर सकते, तो थोड़ा ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट शोज यू, दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर शोज यू बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे देख लो, ये दो जब आया था ना, ये 2 दिन जब आया था, यहाँ पे सेल करना चाहिए, फिर ये फुल फुल लाइन्स आना चाहिए। तो मिनिमम 3 लाइन्स 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ऐसा 3 लाइन्स देखो, 3 लाइन्स पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये चल रहा अभी, और इसके पहले भी सेल था ये 3 लाइन्स पे, और ये 2 बाई आया था, बट 2 पे अपन काम नहीं करते, सो 3 आना चाहिए। तो नेक्स्ट अभी जब 3 आता है, इसमें आप बाई कर सकते हैं, ये थोड़ा स्कैल्पिंग वालों के लिए, ऑप्शंस में काम करने वालों के लिए अच्छा रहता है, ये प्रॉबल टॉप है, ये प्रॉबल बॉटम है, ये स्कैल्पिंग के लिए अच्छा रहता। तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में प्रॉबल टॉप में सेल करो, तो ऐसा यूज करना चाहिए। इफ यू गो टू हायर टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स, यहाँ पे दिखाता देखो, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसा आप देख सकते हैं, 1 आवर, ठीक है। सो ऐसा आप देख सकते हैं, प्रॉबल टॉप प्रॉबल बॉटम दिखाता है, तो यहाँ पे देखो ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में प्रॉबल टॉप है, ये प्रॉबल टॉप से रिवर्स आ गया, प्रॉबल टॉप से रिवर्स आया था ये। तो ये ऐसा चलते रहता है। सो दिस सिस्टम इज डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। सो आवर webinar concentration is on X2 system, which is best for swing trading, intraday trading plus swing trading। तो कहाँ पे था निफ्टी, 25,093, तो वहां से 150 पॉइंट्स का, आपके आंखों के सामने 150 पॉइंट्स का फॉल था। देख लीजिए, ये जो वेबिनार है ना, ये वेबिनार कब डिसाइड किए हम, जनरली
सैटरडे के दिन हम डिसाइड करते हैं इसको, जो है ना वेबिनार शेड्यूल करते हैं। बिटकॉइन का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रहता 6 to 8 PM इवनिंग टाइम, और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एक ही वेबिनार है वीकली, दैट इज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 12। तो नेक्स्ट फ्राइडे क्या होता है आई डोंट नो, और ये फ्राइडे आज वो क्या होने वाला है, लास्ट सैटरडे तो मुझे आइडिया नहीं है। जो सिग्नल आया मैं आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ मैं, और देयर इज नथिंग टू हाइड हियर। लाइव मार्केट चल रहा तो देख लीजिए। अगर आपको इंडियन मार्केट में काम करना है तो दिस इज बेस्ट सिस्टम, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो भी दिस इज बेस्ट सिस्टम, फॉरेक्स में काम करना है तो भी दिस इज बेस्ट सिस्टम। तो किसी भी मार्केट में विद कॉन्फिडेंस यू कैन ट्रेड, स्टॉप ब्लाइंड ट्रेडिंग। और टिप्स लेना बंद करो, टिप्स में कुछ भी नहीं मिलता। टिप्स में मैं बोलता हूँ निफ्टी सेल करो बोल के, आपको समझ में आता क्या मैं कौन सा सिस्टम से सेल करो बोल के बोल रहा हूँ बोल के? तो यू विल नॉट बी नोइंग नो फ्रॉम विच सिस्टम आई एम टेलिंग यू टू सेल। अगर मैं टिप्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो अभी तो मेरे पास टिप्स का नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं है हमको टिप्स देने के लिए। अगर कोई भी आदमी आपको समझो आज मॉर्निंग निफ्टी में बाई करो बोल के दिया, तो कौन सा सिस्टम से दिया भाई, कौन सा पैरामीटर से उनको बाई का सिग्नल आया था, और क्या देख के उन्होंने बाई बोल रहा बोल के आपको आइडिया आता क्या? नहीं आता ना। तो व्हाई डू वांट टू ब्लाइंडली ट्रेड एंड टिप्स? ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस नो, अभी बहुत जने बोल रहे थे ना एच एल नीचे आए तो बाई करो बाई करो बाई करो, डिफरेंट स्टॉक्स में बाई करो, ऊपर ही जाता। हाँ ऊपर जा रहा, बोलो मेरे पास तो सेल है। कब है सेल? ये 40 जो भी है, ये 4800, सॉरी 4930, डेट देखो 9 जुलाई। 9 जुलाई से आज तक हर आदमी जो टीवी में आता वो सब बोल रहे डिफेंस स्टॉक बाई, डिफेंस स्टॉक बाई, डिफेंस स्टॉक बाई। क्या हो रहा है डिफेंस स्टॉक में? और बैंक स्टॉक्स बाई, बैंक स्टॉक्स बाई, बैंक स्टॉक्स में क्या हो रहा बोलो? मैं आपको दिखा ना एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, सेल सिग्नल है। तो ये जो है ना, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो तो अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल। का जो ब्लाइंड ट्रेडिंग है और जो डर है वो चले जाता। ब्लाइंड ट्रेडिंग करना बंद करो, कितना पैसे कमाते दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ब्लाइंड ट्रेडिंग करना बंद करो और सिस्टम को फॉलो करो। और किसी भी सिस्टम, नो सिस्टम विल गिव यू 100% एक्यूरेसी, वो इम्पॉसिबल है। बट हम क्या करें बोले तो, हमारे पास अगर किसी भी सिग्नल में लॉस आया तो उसको हम रिवर्स करके रिकवर करते, ठीक है। तो एज ए टोल्ड यू, एक बार आप लॉस को जीरो करना सीखे तो अल्टीमेटली विल बी सक्सेसफुल ना भाई। समझो का एक समूह कैपिटल है, लास्ट मंथ में आप ट्रेडिंग करें, 10 ट्रेड करें, 10 ट्रेड में आप 50,000 कमाए, और 3 ट्रेड में आपका 30,000 का लॉस है। अगर ये 30,000 को आप जीरो कर दिए, ये 50 तो आपका अकाउंट में रहता ना। सो लाइक दिस आप देख लीजिए, ये ट्रेड टू ट्रेड देखो, देखे तो आपको समझ में आता। तो दिस इज बेस्ट सिस्टम फॉर पीपल हु आर डूइंग ब्लाइंड ट्रेडिंग। ब्लाइंड ट्रेडिंग करना बंद करो, टिप्स लेना बंद करो, और सिस्टम को फॉलो करना सीखो। और रूल बेस्ड सिस्टम है, समझ में नहीं आता और एक बार सैटरडे देखो, समझ में नहीं आया तो एवरी सैटरडे देखो वेबिनार, ठीक है। देखने के बाद में जब कॉन्फिडेंस मिला तभी ट्रेडिंग करो। हमको कॉन्फिडेंस है, दैट इज द रीजन वी आर शोइंग यू इन लाइव मार्केट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाने वाला कोई भी नहीं है आपको यूट्यूब में, ठीक है। जाके देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, नो बडी विल शो यू ट्रेडिंग सिस्टम। और मैं दिखा रहा हूँ नॉट ओनली निफ्टी, बिटकॉइन में दिखा, सॉरी बिटकॉइन में दिखा रहा हूँ, डॉ जोन्स में दिखा रहा हूँ, और गोल्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा, इथीरियम में दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट नो एवरी अल्टरनेट मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे 6 to 8 PM देख सकते हैं। वहां पे भी जो वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है बिटकॉइन, उसमें भी हम आपको इस सिस्टम का सिग्नल दिखा रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव गॉट इन आवर सिस्टम। तो आपको कॉन्फिडेंस आए तो ठीक है, नहीं आए तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस मिला उस दिन सॉफ्टवेयर ले लो, नहीं तो कम से कम वेबिनार को आ जाओ, अटेंड करे तो कम से कम आपका नॉलेज बढ़ता। और कहाँ पे आप फेल हुआ वो आप देख सकते हैं। अगर समझो मॉर्निंग आपको लग रहा कि बहुत जनों का जो है, बहुत जनों का ये व्यू है कि उनको, उनका एक ये रहता है, उन्होंने बोलते रहते कि मेरे को लग रहा है। लगने क्या है भाई, लगने का नहीं लगने क्या है, ये मार्केट है, पैसों का खेल है ये। लगने क्या है, गेस करने का बंद करो आप, गेस करना, गेस करके ट्रेडिंग करना बंद करो। वो लगने वाला, वो लगना नहीं लग रहा, वो सब नहीं है। सिस्टम में जो सिग्नल आता वो आप काम करो। तो सेल आए तो सेल करो, बाय आए तो बाय करो, ब्लाइंड ट्रेडिंग बंद करो और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में काम करो। और देयर इज नो सॉफ्टवेयर व्हिच कैन गिव यू दिस एक्यूरेसी और
there is no person who is showing you 1 minute time frame chart in extremely volatile instruments like बिटकॉइन. बैंक निफ्टी का बाप है बिटकॉइन, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट्स. तो बैंक निफ्टी तो उसका छोटा ये है, तो ये दिखाने का कुछ हमको प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ तो रिवर्स करेंगे भाई, क्या होता, कुछ नहीं होता. मार्केट में जाके लाखों का करोड़ों का लॉस तो नहीं होता आपको बैंक निफ्टी में. सेल आए तो सेल करो, बाय आए तो बाय करो, और स्टॉप लॉस हुआ तो रिवर्स करो पुल बैक में विदाउट एनी हेसिटेशन और विदाउट एनी कंफ्यूजन. पुल बैक में सेल करो if it is near to your enterprise. कुछ नहीं होता. तो कैपिटल है तो you will be getting confidence in system also. So reasonable capital से काम कीजिए. रीजनेबल कैपिटल नहीं है तो मार्केट में नहीं आना चाहिए. अच्छा कैपिटल से ही मार्केट में आ जाइए. 50,000 लगा के मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ बोलते अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता. तो 50,000 1 लाख वाला काम बंद कीजिए. अच्छा कैपिटल से आके आराम से एक अच्छा सिस्टम लेके और उसके बाद में ट्राई टू ट्रेड विथ रूल्स एंड विल बी सक्सेसफुल. तो अभी तो 11 o'clock इज द टाइम एंड ऑब्जर्व कीजिए, मैं ये चार्ट दिखाता रहता हूँ आपको बीच में. तो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस नो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स. और आपका कुछ आपको अनम्यूट करना हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार. चैट बॉक्स में मुझे बोल दीजिए जो भी आपका क्वेश्चंस वगैरह है, और कुछ डाउट्स वगैरह है तो डायरेक्टली हम कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर वेबिनार. अभी इसमें आप बात करना बोलते हो अनम्यूट करता हूँ. सो इफ आर इंटरेस्टेड यूज दैट फीचर. अब देखेंगे अभी 11 o'clock इज द टाइम. तो 12 o'clock तक मार्केट में क्या होता है ऑब्जर्व कीजिए, और ये सिस्टम में क्या सिग्नल आ रहा है वो भी आपको समझ में आता है.
can see the time here now, 11:41. Another 20 minutes is there in this webinar now. So 12 p.m. is the end of this webinar time. And you can see continuously one signal is going on in Nifty, Bank Nifty, Sensex, and this one no mid cap and Fin Nifty. And you can observe now what kind of small pullbacks are coming after sell signal. You can see this kind of movement has come, but there will be no fake signals. And if you want to trade every small swing, it is not possible in this system. If at all you want to trade, no, you may go for X5, but I don't suggest to take small trades like this, because that will not be suitable for any type of this one, because by the time you catch this one, you'll be losing money on brokerage only, buy and sell, buy and sell, buy and sell, but you will not make any money. So in spite of this much volatility, you can see direction is correct in this one. So try to concentrate on main signals, and when pullback signal comes, you try to take it, because ultimately for small swings, if you take ultimately you'll be losing capital, and you'll be paying heavy brokerage. Right now, sell signal is going on in Nifty, Bank Nifty, Mid Cap Nifty, and this one. And stocks we're not covering in this one. So if you want to see any stock chart, you can see afterwards in demo. So this is about this one. And Dow Jones also, you can see Dow Jones, we have a buy signal, Dow Jones, Nasdaq, okay, and Nifty. This is 1 minute time frame chart, and this is of X5 system, but we are not interested. We are not covering this one in this webinar. So we are covering only X2 system, which is best system for intraday as well as swing trading. And if you've got any questions, you can ask me. And one important point to observe is, in spite of these small swings, you're not getting any pullbacks also here. Why means that particular software, the formula has to be satisfied to give you pullback signal. So pullback signal also will not come whenever you want, or it will not come. Many signals will not come. So when the particular condition gets satisfied, it will give you pullback signal also. So observe कीजिए, same signal चल रहा अभी, तीनों 5 इंडेक्स में same sell signal चल रहा. So next signal, if you get a varied buy signal, अगर आपको 2 arrows मिले तो फिर buy कर सकते हैं, नहीं तो 2 एरोप्लेन मिले तो भी buy कर सकते हैं, नहीं तो 1 arrow 1 एरोप्लेन मिले तो ग्रीन कलर वाला buy कर सकते हैं. तब तक sell on rise easy structure, and pull back आए तो निफ्टी में और एक बार सेल कीजिए. So this is the structure. And इसमें देखो, one thing is clear, when you have rule based trading, अगर आपके पास rule based trading है, किसी भी सिस्टम है, रूल बेस्ड सिस्टम है, तो अल्टीमेटली आपको इमोशंस नहीं रहते. इमोशंस आपको नहीं है, समझो. इफ यू डोंट हैव एनी इमोशंस नहीं, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. क्यों बोलते हो? इमोशन से ही 99% ट्रेडर्स लॉस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाता बोल के, बट अगेन इट इज गोइंग डाउन. और यहाँ पे शायद आपको लगता होगा कि ऊपर जाता बोल के, बट आपको यहाँ पे सेल आया था. दैट इज द रीजन. मेन सिग्नल पे कॉन्सेंट्रेट करो. पुल बैक आए तो करो, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक, बट मेन सिग्नल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए. और उसमें मिनिमम निफ्टी में तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट भी आपको 200-300 पॉइंट का तो मिल रहा है फर्स्ट टारगेट. सो इफ यू ट्राई टू कंसिडर ऑन फर्स्ट टारगेट इटसेल्फ, दैट इज आल्सो वेरी गुड. एंड इफ यू गॉट मोर नंबर ऑफ लॉट्स, आप फर्स्ट और सेकंड टारगेट के बीच में एक मिड पॉइंट पे एक लॉट एग्जिट हो सकता है 50% ऑफ द पोजीशन, और रिमेनिंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करो ना भाई. ये क्या होता है वी डोंट नो. फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम 25,098 सेल सिग्नल वाज देयर. सो वहां से 400 पॉइंट्स गिरता क्या, वी डोंट नो. ओके, so try to concentrate on the main trend, and whatever profit that comes ना, ये कहाँ पे एग्जिट करना वो तो आपको मैं ऑलरेडी बोल दिया टारगेट के बेसिस पे. so try to take at least mid point of first and second targets. so as of now ये टारगेट भी ऑलमोस्ट आ गया. you can see फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स हियर. इसका बीच में जो एक लाइन क्रॉस किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे तो आ गया. so 50% of the position book profit, and remaining 50% you can carry forward, and you can trail stop loss. और एक वन में भी हमारे पास तो सेल है, और बैंक निफ्टी में तो डाउन ट्रेंडिंग का जोन स्टार्ट हुआ. दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी. तो इसमें देखो, दिस इज आवर फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल, और ये थर्ड बेस्ट भी हो गया. ये आपको सिस्टम आइडिया है तो, नहीं तो हमारा एक बार वीडियोस देख लीजिए. तो X1 सिस्टम में बैंक निफ्टी में फोर्थ बेस्ट बाय सेल सिग्नल इज रनिंग, एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन भी आ गया. सो ऑल पुल बैक्स विल बी स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज. सो पुल बैक है तो बैंक निफ्टी में और एक बार सेल करना चाहिए. सो इवन इफ यू डोंट हैव X1 आपके पास नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. इसमें जो सिग्नल आता है उसमें आप काम कीजिए.
तो देखेंगे इसमें कहाँ तक जाता है ये सिग्नल। मेरा व्यू तो 24,850 800 तक तो आना चाहिए एक बार। सेकंड टारगेट इज समवेयर अराउंड 24,800। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ तक आधा क्या बोल के, बट 50% वाली पोजिशन एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, तो उसके बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स ऐसे स्क्रीन आपको दिखता, बट उसके बाद में स्टिल इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम, नेक्स्ट वीक का वेबिनार भी अटेंड हो जाइए। और वेबिनार तो फ्री है, नो रिस्ट्रिक्शंस। हो जाने के बाद में आपको आइडिया आता है सिस्टम कैसे काम करता है बोल के, 3-4 देखो, देखने के बाद में इफ यू आर ओके देन ओनली गो फॉर सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें तो आपको मालूम हो जाता है हमारा सर्विस कैसा रहता है और सपोर्ट कैसे रहता है बोल के। तो नो सिस्टम, नो सिग्नल्स विल बी रिपेंटिंग हियर, तो ऑल आर नॉन रिपेंटिंग सिग्नल्स। सो किसी भी सिग्नल एक बार आने के बाद में डिसअपियर नहीं होता और प्लेस चेंज नहीं होता। तो नॉन रिपेंटिंग सिग्नल्स है x1 में भी, x2 में भी, और x5 में, x3 में भी और x5 में भी, ये चारों में भी नॉन रिपेंटिंग है। x4 में एक है बट वो भी नॉन रिपेंटिंग है, बट रीलोडिंग का एक फैक्टर रहता है वहाँ पे। तो हमारा सिस्टम्स में हम वी विल नेवर सेल repainting indicators. Okay, all our systems are non-repainting indicators only. तो उसका आप 100% कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। सो देख लीजिए निफ्टी में तो 24,940 चल रहा है अभी लाइव में, ये भी आप देख सकते हैं 24,940 लाइव में देख सकते हैं। फ्यूचर्स का चार्ट है तो फ्यूचर्स भी आप ओपन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 78 स्टॉक्स आप लोड कर सकते हैं। मेरे पास तो कम है, मेरा दूसरा MT4 में है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, तो मैं थोड़ा ये इंडेक्स के लिए सेपरेट लगाता हूँ और उसके लिए सेपरेट MT4 है। इफ यू वांट यू कैन टेक लाइक दैट। और एक MT4 में कमोडिटीज रख सकते हैं, एक MT4 में बिटकॉइन रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। वंस योर सिस्टम इज सेट नो, यू विल बी गेटिंग सिग्नल्स इन एवरी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक पॉइंट है इसके बारे में, फिल्टर के बारे में। अगर सेल सिग्नल आने के बाद में ये फिल्टर अगर रेड कलर नहीं हो रहा, समझो फॉर एग्जांपल नो समटाइम्स व्हाट में हैपन, ये सेल सिग्नल आ जाता, आने के बाद में ये रेड नहीं रहता, ग्रीन रहता। ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन इज बाइंग प्रेशर। तो बाइंग प्रेशर में अगर आपको सेल सिग्नल मिल रहा, यहाँ पे तो रेड कलर ही है। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो क्या करना बोलो तो एक बार सेल कीजिए। सेल करने के बाद में जो करंट कैंडल रहता 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का, जो करंट कैंडल रहता लेट इट क्लोज, और नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गए तक ये रेड होना चाहिए। अगर रेड नहीं हो रहा तो वहां पे एग्जिट हो जाओ, नहीं तो रिवर्स करो। एग्जिट करो तो ऑलमोस्ट वहीं पे मिल जाता। ज़्यादा कुछ 30-40 200 पॉइंट्स ऐसा तो नहीं रहता, बट छोटा ही माइनर लॉस रहता वहां पे। एक बार एग्जिट हो जाओ, क्यों बोलते हो, जब ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको सताने का चांस रहता, ट्रैप करने का चांस रहता। सो एक बार आप एग्जिट करके, नहीं तो सेम डायरेक्शन में फिर जा सकते हैं, बाई का डायरेक्शन में जाके वो लोएस्ट पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो ऐसा काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट नाउ। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज regarding this filter. When you get a sell signal, this filter generally it will be in red color. Suppose if it is not turning into red color, if it is still green color, it means that no, green color means what? Buying pressure. So if stock is in buying pressure and if you're getting a sell signal, that means there is no support from the filter. So what you have to do is take sell position and let that 30 minutes, now it is 1 minute time frame. So take that sell position, whatever is the sell price, and go to 30 minutes time frame and wait for present candle close. Okay, present candle will be closed and next candle also to be closed. So present candle plus next candle, two candles must close. Okay, that means now we are giving some time to the market. So by next candle close, if filter is not turning into red color, then you exit that position, or you can even take reversal, and whatever is the lowest point, you can stop loss from there, and this sell direction you can take one more trade. So we are giving some time to the market of at least no 30 minutes time frame.
So in 30 minutes, if it is not supporting you, it is not advisable to be in that position. 90% of the time, it will not give you big losses. Very small, 1 point, 2 point losses will be there, because what I observed is whenever filter is not supporting, it will go into consolidation and it will trap many people. So we don't want to be trapped in consolidation. So if filter is not supporting, then you give time to the market. Don't exit immediately, because there is no rule that this will have to support, because it represents higher time frame trend. So if it is not supporting, give 30 minutes time for that. That means present candle has to be closed and next candle, full candle, has to be closed in 30 minutes time frame. And till that point of time, if it is still green color, then you exit that position or take reversal and wait for a new signal to take no new position. Otherwise, no, lowest point will be the stop loss for this one. This is important point. Try to understand. This is important point. Try to understand this one, no, because many people are getting confused when ribbon is not supporting. So you have to give time to the market when ribbon is not supporting. At least not two candles. Present candle plus next candle has to close, and then only take decision whether to hold that position or reverse the position. And 90% of the time, if you reverse also, immediately you'll get some scalping type of profits you'll get. Once you get that kind of behavior, I'll try to explain. Probably in Bitcoin, many times that will happen, but ultimately in next 30 minutes that will ribbon will change. So I'll try to show in Bitcoin or gold, if it is possible, because now we are conducting webinars in every alternate day, Monday, Wednesday, and Friday. So we'll be getting that particular scenario.
You can see the time now, 11:57. It is time to end this webinar, and I hope you understood about the importance of rule-based trading. So X2 is rule-based trading. If you want to follow rule-based trading, this is the best system. And if anybody is showing you 1 minute time frame, you can observe now what kind of signals they are showing you. But in our system, there will be no false signals, no fake signals, and it will give you main signals plus pullback symbols. Pullback symbols will be useful for no option traders. Main signals will be useful options and futures both, but pullback symbols will give you one particular area where you can take option sell trades or buy trades, whatever it is as per your this one. Main signals will give you at least 2 to 5 days of trend. So if you are intraday trader, use pullback symbols, and this also main signal you can take for the same day portion, and you can carry forward next day also till you get one more signal. And I have told you about entry, stop loss, exit, and this one now. If you want to trade 5 minutes time frame, let us say Nifty, let us go to Nifty, and if you want to trade 5 minutes time frame, there is separate template. The template you have to load, but this 5 minutes will be very big time frame, like it's almost trading like in 1 hour time frame, general time frame. So in 5 minutes, if you want to trade, go for this particular template. So in 5 minutes time frame, we have a sell signal from this particular level. Okay, what is this level? From 25,427. Okay, now we are at 24,950. That means how much? Almost 500 points profit. But this is for swing traders, not for intraday traders. So here you can see, once you have taken entry, afterwards it went up, and then you got one pullback symbol. So this is good point to take, best point to take a short position. So target for this one will be the swing low. So for main signal, target will be first target and second target will be there. But for pullback symbols, swing low will be the target. Here also swing low has come. So this is for swing trading. This template, 5 minutes template is for swing trading. If you want to trade 1 minute template, that is for this one. It will show you a trend for 2 to 5 days. In 5 minutes time frame, probably 1 to 2 to 3 weeks of trend will come. This is what we have observed. So आपको इंटरेस्ट है तो देख लीजिए इसमें. If you want you can either do intraday or 2-3 days of swing, or you can even go for higher swings. So it's up to you. So this software, it will be useful for everything, for intraday, for this one, for this one for small swings and for big swings. If you go for higher time frames like 15, 30, 1 hour, etc., it will give you much more bigger trades. And if you're an investor, you can even go for H1, H4 also. Depending upon your capital patience, you have to select your time frame. That's a big subject, but we are showing you in 1 minute time frame where nobody can show you this much accuracy, because they will not be having any system to show you 1 minute time frame. And we are showing you with confidence because we know that our system will work. So if you understand this, you can purchase our software, subscribe to our software from our website, xponerator.com. And hope this webinar is useful to you. And let us meet in next webinar. Thanks for watching this webinar.